Rolling. Okay, so most of you has a board called Arduino. Okay. When you use Arduino, you have two options. Either you go for a shield of Arduino, like it has some specific spacing, this power supply side, ADC side, and then 13 digital IOs. Or you can take out the MUSI, which is Atmel 328 Atmel IC, which is a 28-pin IC. So this IC needs following configuration to run. It needs one resistor between pin number 1 and 7, and then capacitor between pin 7 and 8. This goes to VCC, this goes to ground, and between pin number 9 and 10, you need to connect one crystal. So that's all you need. And if you want to create a supply section, you need 7805, which is again a 3-pin IC. One of them goes to the battery positive, which is pin number 1. The second pin is ground, that connects to the battery negative, and then third pin is your VCC. So you have this VCC connected over here, this ground connected over here. And then you have, if you want to use analog to digital, you have some VCC ground pins at these 3-4 pins on the other side. But component wise, you will only need one battery, one H7805, one capacitor of 10 microfarad 16 volts, one 10K resistor, one crystal of 16 megahertz. That's it. Price wise, at Mega will cost you anywhere between 60 rupees to 200 rupees based on what version you are choosing. 7805 will cost you around 10 rupees. The battery will cost you around, depending upon ampere hour, but roughly 220 rupees. 1K resistor will cost you around 1 rupee. 10 microfarad might cost you around 2 rupees because it's a polarized electrolytic capacitor. 16 megahertz crystal will cost you around 5 rupees. And to mount this IC, we need a 3 rupee component, which is 28-pin IC base. Never mount your ICs directly onto the PCB. You have to use something called as IC base. So in fact, this is the shortest version of Arduino which you can use. And I will prefer that you use this one. This makes your circuit compact and very fine in size. But those who are going for ESP32, it is already small. There are some ESP chips which are USB programmable and actually physically sized like this much. You can place them on your thumb and they won't come out. So ESP32, I think 3C model, Node MCU 3C, I don't remember exact name, but this is how it looks like. And it also has USB-C type connector. So you don't have to look for USB A to B or micro USB connectors. So those who are doing a project with ESP can go for this small models. And those who are working with Raspberry Pi, they don't have any option. They have to make a, either they can go for Pi 0 W2, but which is very slow. So I will still recommend use at least Raspberry Pi 4 with 8 GB of RAM or 4 GB of RAM. Preferably use Raspberry Pi 5, but otherwise go for this. Now coming to the assignment of PCB submission. As I mentioned in the video, you might have already seen the video. I will just repeat the entire process. You have to cut the copper clad. ठीक है, ये कटिंग आपका ऊपर PCB लैब है, वहाँ पे जाके करवानी है. You have to exactly mention the dimension, draw outline. ठीक है, इससे थोड़ा बाहर कट करना. अगर आउटलाइन तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है तो डोंट इवन ट्राई टू कट एट 3 सेंटीमीटर. 3.1 पे ही चालू करना ब्लेड, क्योंकि थोड़ा इन हो सकता है. ठीक है. सेकेंडली, ये मैंने लास्ट वीडियो में शायद नहीं बताया, उस वक्त था नहीं मेरे पास. ये जनरल पर्पस बोर्ड है जो आपको ड्रिलिंग रेफरेंस के लिए लगता है. वीडियो में मैंने जैसे बताया, ड्रिल हमेशा कॉपर साइड से अंदर जाएगा, पीछे से बाहर आएगा. अगर डबल साइडेड है तो पूछना मत, फिर कोई भी साइड से चलेगा. लेकिन सिंगल साइड पीसीबी हम बनाएंगे तो कॉपर साइड से हमेशा अंदर जाएगा. ये रेफरेंस पीसीबी है, ये हमेशा यूज़ करोगे स्पेशली फॉर द आईसीज. ये डायरेक्टली मैप होता है तो आईसी के पिन टू पिन, नेक्स्ट टू पिन, और डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसे ड्रिल करते जाने.
आपका अगर ये एडमिट है तो ये 14 पिन ऑन वन साइड, तो डायरेक्टली 1 से लेके 14 तक ड्रिल करना है एंड ट्राई टू प्लेस योर आईसी इन द सेंटर ऑफ द सर्किट, कुछ इस तरह से, ठीक है। और आप ड्रिलिंग करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि इसके कॉर्नर से ही ड्रिलिंग करो, आप कोई भी पार्ट ले सकते हो। और ड्रिल करते हो जब पहला ड्रिल मारोगे फिर 2 होल छोड़ के दूसरा ड्रिल मारना है फॉर द अदर साइड, बिकॉज दिस पैकेज इज DIP, ड्यूअल इनलाइन पैकेज, और डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पैकेज यू यूज यू माइट चेंज द स्पेसिंग, एंड इफ यू आर यूजिंग SMD देयर इज अ बोर्ड कॉल्ड SMD टू DIP breakout or QIP breakout. So you just have to put a solder paste, put your SMD IC, blow the heat gun, it will get soldered, okay, and then you have legs to your SMD IC also. Now first thing you will drill, remember first process is to drill all the components, especially IC, and remember IC you are going to place from this side. So typically IC pin number 1 is on this corner, but when you place it like this and then you flip, your IC pin number 1 will be on this corner. This is called mirroring. Don't make mirroring errors, ठीक है। आप जब प्रिंट आउट लोगे तो भी पॉजिटिव निगेटिव देख के ही प्रिंट आउट लेना है। So once you drill, next thing you have to do is use this scrubber to scrub the entire PCB after drilling, क्योंकि ड्रिलिंग के बाद थोड़ी सी बर आ जाती है, मतलब थोड़ा मेटल का पार्ट बाहर रह जाता है। So you have to scrub it carefully using this, ठीक है। जो MS करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वरदान है, ठीक है। So basically you have to clean the entire PCB using a metal scrubber, then only you start applying your paste. This is nothing but nail art, तो nail पे अलग अलग नाम लिखने के लिए जो यूज़ करते हैं। इसका टिप बहुत फाइन होता है, रफली 1 mm तक ट्रैक आराम से इससे बन जाता है, ठीक है। आप बहुत फाइन भी बना सकते हो, दैट इज़ अप टू योर स्किल, पर हर कोई नेल आर्ट यूज़ करेगा। डोंट गो फॉर योर रेगुलर मार्कर्स, क्योंकि FeCl3 रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो मार्कर की इंक उड़ सकती है और अंदर का कॉपर रीच आउट हो सकता है। तो आइदर यू गो फॉर नेल पेंट और ऑयल पेंट, दोनों ही निकालने के लिए नेल पेंट रिमूवर या ऑयल पेंट रिमूवर आता है, यू कैन यूज़ दैट आफ्टर योर PCB इज डन। रिमेंबर वंस यू ड्रॉ ऑल द ट्रैक्स, नेक्स्ट थिंग टेप लाया हूँ मैं, 2 तरह के टेप हैं। ये जो है ये ब्राउन वाली, ये आप बचा हुआ कॉपर प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करोगे। तो जैसे मैंने वीडियो में बताया कि आपके सारे ट्रैक बनने के बाद बाहर एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करते, तो बेसिकली यू ड्रॉ अ एक्सटर्नल ट्रैक, सिल आउट बनाओ उसका आउटलाइन, सो दैट यू कैन पुट टेप टू द एंटायर आउटसाइड एरिया, ताकि फ्यूचर में वो कॉपर बाद में यूज़ आ सके। वो कोई भी चीज़ में यूज़ आ सकता है, अभी आपको शायद नहीं लगेगा यूज़ आएगा, लेकिन वो बाद में, जैसे इस PCB में देखो उन्होंने मेन ट्रैक बना लिया, फिर बचे हुए कॉपर पे जनरल पर्पस PCB बना दिया, ठीक है। सो दिस इज़ ग्रीन मास्क PCB, इतना अच्छा तुम्हारा नहीं दिखने वाला है, तो तुम्हारा जो है वो कॉपर क्लैड जैसे दिखेगा, बेसिकली इसी कलर का, लेकिन इसमें से कुछ कुछ जगह से कॉपर निकल गया होगा। वंस यू कंप्लीट द टेपिंग, दूसरी टेप मैं इसलिए लाया था कि वंस यू स्टार्ट ड्रिलिंग प्लीज़ मेक श्योर दैट 2 people आर देयर, वन इज़ होल्डिंग द PCBs लाइक दिस, ठीक है। अगर वो दूसरा आदमी नहीं है तो यू यूज़ टेप, प्रॉपरली चारों तरफ से टेप करके ही ड्रिलिंग शुरू करना, क्योंकि एक ड्रिल होने के बाद अगर ये रेफरेंस हिल गया तो बाद में IC नहीं बैठेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फिट द IC, एंड दैट्स व्हाई you tape both the PCBs together and then start drilling. Next step, once you, I hope you finish the etching on time. This is for etching you use this powder called FeCl3. ये पानी में डालते ही पानी गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाती है, उसके बाद उसमें कॉपर डालना है, ठीक है। अगर नया फ्रेश FeCl3 तो ब्लैक कलर का दिखता है, ये थोड़ा ऑक्सीडाइज हो चुका है इसलिए ब्राउन हो गया है, और ऑक्सीडाइज होगा, जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेशलाइज चेम्बर है जहाँ पे ये FeCl3 इचिंग होता है। अगर नहीं चाहते तो ये पाउडर लेके जाओ घर पे, कोई भी बर्तन प्लास्टिक का, उसमें पानी डाल के पाउडर डालोगे, वो बर्तन जाएगा हमेशा के लिए, येलो हो जाएगा, और यू कैन डू दैट, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, बहुत डेंजरस भी होता है, आँखों में नहीं जाना चाहिए। कॉपर से अभी मेरे हाथ पे थोड़ा सा लग गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे मैंने थैली उठाया लग गया है,
तो कॉपर से उसको दूर रखना, वरना कॉपर पे जहाँ तुम टच करोगे वहाँ पे मार्क आने शुरू हो जाएंगे फिंगर्स के, ठीक है। सो FeCl3 और इस तरह का प्लेन कॉपर क्लैड एक दूसरे के दुश्मन है, उसको दूर रखो, अदरवाइज विल स्टार्ट ईटिंग ईच अदर। नेक्स्ट, वंस यू फिनिश द इचिंग, आपको स्क्रबर वापस यूज़ करना है। स्क्रबर यूज़ करने के बाद ट्रैक निकलते ही सोल्डरिंग करना है। तो इसके कंटिन्यूएशन में मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको भेजता हूँ सोल्डरिंग कैसे करना है। सो आप तब तक नहीं स्क्रब करोगे आपका नेल आर्ट जब तक आप सोल्डरिंग के लिए रेडी नहीं हो। कंपोनेंट सारे रेडी है तभी सोल्डरिंग शुरू करेंगे, और उसके जस्ट पहले ये यूज़ करेंगे और उसी वक्त नेल आर्ट निकालेंगे, जिससे हम कॉपर का ऑक्सीडेशन से बचते हैं। कॉपर पे अगर ऑक्साइड लेयर चढ़ गया, कॉपर ऑक्साइड, तो वो सोल्डरिंग नहीं पकड़ेगा और उससे प्रॉब्लम होती है। सो टू अवॉइड दैट रिस्क, वी फर्स्ट स्क्रब, पुट द नेल पेंट, and just before the soldering we remove the nail paint. I hope it is clear, and now I will expect you to start making this PCB. You can go for this circuit. Those who are using Arduino, those who are using Raspberry Pi, they can use this thing again, 20 pin in line, फिर नेक्स्ट लाइन वापस 20 पिन, इसी तरह से वो ब्रेकआउट बोर्ड बनेगा। लेकिन इसमें मिररिंग एरर आएगा, रास्पबेरी पाई खुद उल्टा होके इस पर लगता है, तो मिररिंग बहुत सोच के करना, वरना रास्पबेरी पाई जला दोगे, ठीक है। यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड